T minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends. Today our topic is related with the laws of the motion. While studying the any content related with science, you must have a knowledge of the laws of motion. क्योंकि बिना लॉज ऑफ मोशन पढ़े आपको आगे का कोई भी आएगा नहीं. इट इज द बेस ऑफ द फिजिक्स which is the branch of that the science. Now in this we are seeing here a uniform motion. क्या है ये uniform motion? We have already studied uniform velocity speed. As you know it, then at that time it will become the very easy for you to understand. Uniform motion कैसा है देखिए. When you cover the equal distance in equal interval of the time, equal distance in equal interval of the time, then we can say that that body is performing a uniform motion. The body जो है कैसे कर रही है? It is performing a uniform motion. Suppose here this one A, B and the C and the D. This type of the examples, that is the very popular. It is a 10 meter distance. This is also 10 meter distance. This is also 10 meter distance. And the someone is here and he is going from this to this place. Every time the destination C and the B is there. और हर जगह पर ये क्या डिस्टेंस पे ये रुक रहा है. C पे रुका, B पे रुका, उसके बाद में A पे रुका. When he reach to the point C by covering the 10 meter distance, he is requiring a distance, requiring a time. It is equal to the 5 seconds. यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 5 सेकंड ही लगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 5 सेकंड ही लगे. हर बार उसको 5 सेकंड ही लग रहे और डिस्टेंस भी सेम ही वो क्या कवर कर रहा है. When any body cover the equal distance in equal interval of the time, then we can say that it is the uniform motion. But in real practice, it is not possible to move with the uniform motion. Uniform motion से कोई भी हम क्या जा नहीं सकते. Because the number of the barriers are there. Suppose you are going from one place to another place, then at that time your speed that will not be a constant. Constant नहीं रहेगी. So that is the uniform motion. When a body covers the equal distance in equal interval of the time, then we can say that it is the uniform motion. अभी दूसरा रहा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. We always move with the non-uniform motion. When a body covers the unequal distance in equal interval of the time, then we can say that it is the non-uniform motion. Unequal distance, कम ज्यादा distance है, but equal interval of the time, it will be the non-uniform motion. उसके बाद में equal distance in unequal interval of the time. When a body covers the equal distance in unequal interval of the time, it is also the non-uniform motion. If a body covers the unequal distance in unequal interval of the time, then it is also the non-uniform motion. क्योंकि हम भी जाते हैं रोड पे, हम ड्राइव कर रहे हैं. Someone is driving a bike and is crossing the some distance. रोड पे जा रहे हैं. हर बार रोड जो है अच्छा नहीं रहेगा. कभी खड्डे रहेंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे या कभी ट्रैफिक रहेगा. एवरी टाइम द स्पीड विल नॉट बी अ कांस्टेंट. हर समय पे देखिए कांस्टेंट नहीं रहेगी. कांस्टेंट रहेंगी तो उसका एक्सीडेंट होना तय है. सो
every time we always move with the non-uniform motion. Now see the important topic, that is the acceleration. अभी एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए आपको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए. वेलोसिटी मालूम होने के लिए आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए. क्या है ये वेलोसिटी? वेलोसिटी मालूम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डिस्टेंस का भी नॉलेज रहना आवश्यक है. सो वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अभी एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए हमको वेलोसिटी का भी नॉलेज चाहिए. वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट वी ऑलरेडी स्टडीड. When a body changes its velocity, क्या बता रहे? बॉडी जो है आपकी, when a body changes its velocity from initial to final by covering a certain, by requiring a certain type of the time, it is called as the acceleration or the change in the velocity. Simple definition, change in the velocity per unit time is called as the acceleration. velocity change हुई है. अभी मैं एक जगह पे हूं तो दूसरी जगह पर जा रहा हूं. यहां पे यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0. मूव हो रहा हूं मैं, स्पीड से जा रहा हूं, इस डायरेक्शन पे जा रहा है. इट मीन दैट माय वेलोसिटी इज चेंज. वेलोसिटी जो है कैसी चेंज हो गई है. प्रीवियसली इट वॉज द लेस, बढ़ गई है. उसके बाद में वेलोसिटी इज द कंप्लीटली चेंज. इन अ सिंपल वे हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन. किस रेट से आपका वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है. यू कैन टेक द नंबर ऑफ द एग्जाम्पल. बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ में. You take the any example. Suppose the body is here. Body is here in this way. This is the path, and this is the point A, point B. Now on that the point A पे क्या है? एक कार जो है, कोई भी है, any body is there. In this stage, it is in the state of rest position. Means the initial position is there, initial velocity is here. He is acquiring, that body is acquiring the initial velocity. अबे यहां से यहां जाने के लिए we are applying the force and it is moving in this direction. Because for a velocity the direction is very necessary. From this to this place means the velocity is increased. पहले कैसी velocity थी? कम थी. अभी वेलोसिटी कैसे हो गई? बढ़ गई है. इट मीन द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन. बहुत सारे एग्जांपल है. यू स्टार्ट द पैडलिंग ऑफ योर बाइसिकल. कोई साइकिल चला रहा, बाइसिकल चला रहा है, तो इट इज नेसेसरी टू गिव अ पैडलिंग. पैडल मारना जो है बहुत आवश्यक है. तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बाइसिकल कैसी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना शुरू कर देंगे. इट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हुई है. नाउ यू टेक द एग्जांपल व्हेन यू थ्रो द एनी ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. थ्रो नहीं करना है. अभी क्या करना है आपको? व्हेन यू रिलीज द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्टन हाइट, कुछ हाइट से ऐसा बॉडी पे, कुछ हाइट पे ऐसा बॉडी जो है छोड़ देना है नीचे. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ दैट द ग्राउंड. इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन. इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने पहले पढ़े. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी में क्या है? एक्सेलरेशन है. चेंज इन द वेलोसिटी इज देयर. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सेलरेशन. Now you see the another term, that is the positive acceleration. क्या है positive acceleration? In this there is a change in the velocity. Velocity change होती रहती है from initial to the
फाइनल इंक्रीज होती रहती है। जैसे हम पैडल जो है लगा रहे हैं तो स्पीड जो है वो क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, साइकिल फास्ट जा रही है। If you are giving more pedaling to it, what will happen? That bicycle will start to move from one place to another place with a very fastly, speedily जाएगी। Means it is the positive acceleration is there. Velocity कैसी हो रही है? बढ़ रही है। In a certain direction, it is the positive acceleration. When you drop any body, that is the free fall. We already studied the free fall. It is the best example of that, the positive acceleration. Now, what about the negative acceleration? When you apply a brake to your bike or any train जो है उसको ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? स्टेशन आने के लिए उसको पहले ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल टेक अ सर्टन टाइम, कुछ समय के बाद में इट विल बी इन द कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजिशन, फिर कुछ समय के बाद में रुक जाएंगे। इट मीन द आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है कैसे हो रही? कम कम होते जा रही है। एंड इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट द वेलोसिटी। पहले जो वेलोसिटी जो थी उसके अपोजिट में हो जाएंगे। मीन्स इट इज नथिंग बट द निगेटिव एक्सेलरेशन। जब आप ब्रेक अप्लाई करते, साइकिल को ब्रेक अप्लाई करते, कुछ समय के बाद में वो रुक जाती है। इट इज नथिंग बट द निगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या रहता है? एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है ये कैसे रहती है? कम 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 होते जाती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में कैसा होता है? वेलोसिटी इंक्रीजेस। नाउ वी हैव सीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमने देखे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द टाइम। वेलोसिटी क्या बढ़ती रहती है। और एक्सेलरेशन कैसा रहता है उसका? इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहती है उसी के डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन रहता है। निगेटिव एक्सेलरेशन कैसा रहता है? इन दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस और डिक्रीजेस विद द टाइम। वेलोसिटी जो कैसी होती है? कम कम होती जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज द निगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें कैसा रहता है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। दैट इज द निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल हमने लिया, साइकिल का ब्रेक लगाया, ट्रेन को ब्रेक लगाया। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द निगेटिव एक्सेलरेशन। और व्हेन यू थ्रो द एनी बॉडी इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी जो हमने फेंकी, एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यहां जाने के बाद यहां तक जाएंगी, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट बॉडी विल अटेन। वेलोसिटी जो है कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? दैट बॉडी विल स्टार्ट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। मींस जब आप फेंकेंगे, व्हेन यू विल थ्रो द एनी बॉडी इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी द निगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ यू सी द नेक्स्ट इज द जीरो एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी जो है जीरो रहने की वजह से तो बॉडी जो है मूव नहीं हो रही है। देन एट दैट टाइम वी कैन से दैट एज द बॉडी इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट वेलोसिटी, इट मीन दैट द नो एक्सेलरेशन इज देयर। वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इट विल बी द जीरो एक्सेलरेशन। अभी उसका यूनिट जो है कैसा है देखिए। एक्सेलरेशन इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी divided by time. This is the formula of the acceleration. Final velocity minus initial velocity divided by time means the change in the velocity. Final velocity or initial velocity. Change हो रही है velocity. Divided by time. ऐसा unit you see here. Acceleration का unit पहला है MKH में, और ऐसा यूनिट इज देयर। वेलोसिटी का यूनिट हमको मालूम है, इट इज अ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय अगेन टाइम का यूनिट है सेकंड, सो इट विल बी इक्वल टू द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन CGS सिस्टम क्या रहेगा? इट विल बी
the centimeter per second square. Centimeter per second square. Acceleration is a vector quantity. Vector quantity. अभी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी का उसमें अर्थ है. We are defining the acceleration. It is a change in the velocity. As velocity is there, velocity is nothing but the vector quantity, and for velocity the direction is necessary and the magnitude is also necessary. So acceleration is a vector quantity. If you have any type of the question regarding this, you can ask me anytime. I will try to give your answer in a comment box. Please subscribe our channel for getting the notification. Due to this, you will get the various types of the educational content in your box for getting the knowledge. क्योंकि यहाँ आपको मिलता है genuine content, educational content. So for that, don't forget to subscribe it. Thank you very much.